हम ये नहीं चल रहा है। तो सभी का स्वागत है। और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक तरह से इट इज़ बेसिकली अ कर्टन रेजर टू द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे which is celebrated all across the world on 15th of March. So we have a short presentation. I'll try to be very fast. Next. So essentially, if we say what is World Consumers Day and why it is celebrated, we can only say that on this day we had it was for the first time that consumer rights were recognized, and then by and by they became so important that now virtually every country recognizes the consumer rights. And this is an occasion to not only celebrate consumer rights, but also to stand up in solidarity with the consumer rights movement. Now, in our department, as you can very easily see, that consumer is the focus. We work on the consumer protection framework, on the development and enforcement of standards for their safety and for the performance of goods and services. Then through the legal metrology, this is an assurance for quality, for the quantity. And then there is price stabilization. Next. This year's theme is empowering consumers through clean energy transitions. And these are the events which are scheduled for tomorrow, wherein we are going to facilitate participants who have won prizes under the Grand Onion Challenge, which was a hackathon which we had launched last year in the month of July. And so we will be, we have got almost more than 600 ideas, and from there on we have shortlisted some of them, and these shortlisted participants will be tomorrow felicitated. We are also launching integration of WhatsApp with NCH. We'll be releasing videos from celebrities who will be basically talking about consumer rights and on various issues of consumer concern. Uh, the Honorable Minister will be inaugurating microbiological laboratory at Guwahati and domestic appliances testing laboratory in Chennai. Under the Bureau of Indian Standards, we have a few programs, which is launch of compilation of standard-based lesson plan, wherein we are teaching, we are basically addressing students from 9th to 12th class, and we are promoting standards by this program called Learning Science by Standards. Then there will be handing over of all India first licenses to Messrs. Mitticool, Fire Door and Fire Resistant Steel. There'll be handing over of new MS licenses. There'll be launch of the design, construction, installation and operation of biogas plant with the standards of 9478/2023. There'll be launch of revamped portal of management service certification and portal of training. There will also be launch of conformity assessment scheme on the online reviews. All of us remember we came out with the standards for reviews in the month of November last year. Under the consumer protection, we will be releasing e-digest of consumer decisions which are rendered by Supreme Court and NCDRC. Next. So as we all know, this is the grievance redressal mechanism, and the consumer framework basically, it starts from the manufacturer trader. Then if the consumer is not satisfied, the grievances are escalated to the National Consumer Helpline 1915, and if it is further not addressed, then they can actually file their cases before the three tier consumer commission.
system which is at the national, state and district. And then there is also provision for mediation. But the Central Consumer Protection Authority can take class action matters. So under the consumer protection, when we say about the protection thing, uh, we know that the Consumer Protection Act 2019 came into force on the 20th July 2020, and there have been several features which are enabling the consumer to experience, better, speedier, say, justice. There are provisions for product liability for the manufacturer, for the product service provider, and the product seller. Next. So far we have notified 17 rules under the CP Act and 7 regulations under the CP Act. These were the events that we carried out during the last year for massive outreach. And this has resulted, basically, we've held national workshop on legal metrology. Then there was a national workshop on effective, speedier and hassle-free consumer dispute redressal mechanism, wherein we had invited all the presidents and members of the consumer commissions. There was a National Lok Adalat held. There was Madhyasthata held. There was one-day workshop held in the Northeast in Guwahati to basically address issues which are concerning consumer protection in those states. There was Grahak Madhyasthata Samadhan held in December. Then there was National Consumer Day, which was celebrated on 24th December, a roundtable conference on the insurance sector. And then there were several state-specific meetings in various states. Now, as a result, we can see that there is a drastic reduction in vacancies, which were the major problems when we were addressing the speedy redressal of consumer complaints. Because most of the states would admit that because there was so much of vacancies, because of which most of the consumer commissions were also non-functional. So you can see that in the state, not only the presidents but also the members' vacancies has come down very, very drastically. And amongst the District Consumer Dispute Redressal Commission, this is like very, very drastic. Next. We have also set up mediation cells in the states and UTs. This is the position up to 10th February, where in 24 state commissions, mediation cell has been set up. In 394 district commission, mediation cell has been set up, and 1088 mediators have been empaneled in the district commission, while 142 have been empaneled in the state commissions. Now, as a result, we can see we have given, the data for the past 6 years. So from 2017, one can see, if we, if we see just the graph, you can see that the cases which have been disposed are much less than the cases filed. But in 2022, you can see that the graph has simply, the rate of disposal has simply surpassed the cases which were filed. Next. ये मैम कैलेंडर ईयर है? हाँ, ये कैलेंडर ईयर। तो ये मंथली पेंडेंसी है 2021 की, और हम लोगों ने 2021 का कंपैरिजन किया है विद 2022, एंड यू कैन सी फ्रॉम जुलाई 2022 every month it is showing disposal rate of more than 100. So this only shows that with very strategic planning and with very focused attention on disposal, we have been able to succeed in getting what we had promised and what has been promised under the Consumer Protection Act, which is speedy and hassle-free disposal of consumer grievances. Disposal of cases at various At various, yes, but it is month-wise.
Now, as we said in the beginning, the theme of this year's World Consumer Rights Day is how to empower consumers with clean energy transitions. So in line with that, and also in line with Honorable Prime Minister's concept of lifestyle for environment movement, the department initiated this right to repair portal to protect consumers against planned obsolescence. And what is planned obsolescence? It is basically designing products with limited life, or in short we can say the products are designed to fail rather than work. So basically the whole idea is that more and more, and every time consumer needs to buy his appliances, daily requirements and so on. So by launching Right to Repair India portal, we are trying to address the concerns on the originality, warranty of spare parts, whether self repair can be possible at the by the consumer himself. How can we explicitly require the manufacturers to make to mention differences in liability for warranty, guarantee and the extended warranty period. There is also there'll be methods to check authenticity of the spare parts and information on the country of origin. Next. So this is how it looks like, and these are the 4 sectors which we had identified. ये 4 सेक्टर्स वो हैं जिनमें कि अधिकांश लोग कुछ ना कुछ आर्टिकल तो निश्चित रूप से या कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर ही यूज़ में लाते हैं, या जिनके कि निरंतर यूज़ में ये आर्टिकल्स होते हैं. तो चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, चाहे वो मोबाइल हो, फार्मिंग इक्विपमेंट्स हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो. नेक्स्ट. और इसके साथ साथ मैं बिफोर वी गो टू मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम लोग एक हैकेथॉन करने जा रहे हैं ऑन वियरेबल्स एंड ईयरेबल्स, सो टू से. सो दिस इज अ न्यू सेक्टर जहाँ पे बहुत छोटे डिवाइसेस, चाहे वो वॉच के रूप में हम पहन रहे हों, चाहे वो हम रिंग में पहन रहे हों, चाहे वो हम ईयरपॉड्स के रूप में यूज़ कर रहे हों, और ये सभी बहुत मतलब इन जैसे हम लोगों ने मोबाइल के लिए किया कि हमने उनकी चार्जिंग के लिए एक कॉमन पोर्ट के बारे में बात की, तो अब उसी तरह से उसी के अंतर्गत ये जो इलेक्ट्रॉनिक वियरेबल्स हैं, इनके लिए हम ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि कैन देयर बी some better options for charging. Can it be a wireless charging system? Can it be charging through the person's movements or some such thing? So we are thinking of actually organizing a hackathon on this issue. Again, it will be an interministerial endeavor, and we'll be taking help of the concerned ministries on this subject. Next is the prevention of misleading advertisements, which guidelines have already been issued. Next. And standards on fake and deceptive reviews has already been published. Next. अब ये एक सबसे बड़ा जो एक कंज्यूमर के साथ जो इंटरफेस है वो हमारा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से है. नेक्स्ट वीडियो. हेलो, नमस्कार. स्वागत है आप सभी का भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यक्रम हेलो जागृति में. मैं हूँ जागृति, जो हाजिर हो गई है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति आप सभी को जागरूक करने के लिए. दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी NCH यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 कैसे बन रही है उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान का जरिया. आइए सुनते हैं NCH की एक सफलता की कहानी खुद उपभोक्ता की जुबानी. मेरा नाम भुवन है. मैं देवास MP से बोल रहा हूँ. पिछले दिनों एक इमरजेंसी केस के चलते मुझे मेरी वाइफ को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था. 3 दिन तक भर्ती और इलाज का करीब 18,000 बिल बना. इस राशि का क्लेम उठाने के लिए जब मैंने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में दरखास्त लगाई
तो उन्होंने क्लेम देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने कंपनी के अधिकृत डॉक्टर्स के पैनल से अप्रूवल नहीं ली। जब मैंने कहा कि ये क्लॉज आपने पॉलिसी देते वक्त बताया ही नहीं था, तो इस बात से वो मुकर गए। ओहो, फिर मैंने इसकी शिकायत NCH यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 में की। 1 महीने के अंदर ही इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पूरी की पूरी क्लेम राशि लौटा दी। वाकई में NCH यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में मददगार साबित हो रही है। अगर आपकी भी कोई उपभोक्ता समस्या है तो फौरन राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए consumerhelpline.gov.in। याद रहेगा ना? तो ये हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो सच्ची घटनाएं हैं, जिनका वास्तव में हमारे NCH में जिन्होंने अपनी कंप्लेंट्स लिखाई, उन्हीं पर ये आधारित रहे। नेक्स्ट। तो ये एक ओमनी चैनल है जो कि वेब पोर्टल, ईमेल, CPग्राम, SMS, NCH ऐप या उमंग ऐप के माध्यम से इसको लिया जा सकता है। और अभी हाल में ही जिसको कि मैं कल बता रही हूँ कि हम इंटीग्रेशन व्हाट्सएप के साथ भी हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट। ये सभी सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं और वर्चुअली ये 24/7 कार्य कर रहा है, जिसमें 8 बजे प्रातः से 8 बजे संध्या तक तो कॉल एजेंट्स के माध्यम से हो रहा है। लेकिन इसके बाद फ्रॉम 8 PM to 8 AM देयर इज अ कॉल बैक रिक्वेस्ट विच कैन बी मेड ऑन SMS। और इसमें इस समय हम 17 भाषाएं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इंग्लिश और हिंदी के अलावे हम उसमें कर रहे हैं। जैसे अभी लेटेस्ट जो जुड़ने वाली हैं वो नेपाली, मैथिली और संथाली हैं, मणिपुरी, कश्मीरी। नेक्स्ट। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हम लोग पहले भी एक बार कह चुके हैं, इसका एक वीडियो सक्सेस स्टोरी अगेन वी कैन सी। और तब तक हम लोग इसको, हम चैटबॉट वगैरह से, हम टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यक्रम हेलो जागृति में। मैं हूँ जागृति, जो हाजिर हो गई है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति आप सभी को जागरूक करने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी NCH यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 कैसे बन रही है उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान का जरिया। आइए सुनते हैं NCH की एक सफलता की कहानी खुद उपभोक्ता की जुबानी। मेरा नाम भुवन है, मैं देवास MP से बोल रहा हूँ। पिछले दिनों एक इमरजेंसी केस के चलते मुझे मेरी वाइफ को ये डॉकेट्स रजिस्टर्ड हैं विच वी कैन सी फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। डॉकेट्स रजिस्टर्ड भी एक संख्या है जिससे कि हमें पता चलता है कि एवरी मंथ कितने लोग न केवल शिकायत लिखा रहे हैं बल्कि सक्सेसफुली वो रजिस्टर भी हो रहे हैं। तो जैसे अगर एवरेज देखा जाए 2017 का, तो एवरेज था 37,062, वो बढ़ करके एवरेज आ गया 2022 में 86,674। सो दिस ऑल्सो शोज कि किस तरह से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हमने इसमें बढ़ोतरी की है। और ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक उपयोग के माध्यम से। नेक्स्ट। ई दाखिल पोर्टल हमारे लगभग सभी जगह पे आ गया है, जिसमें कि लद्दाख और JNK को छोड़ करके। और ये ई दाखिल के स्टेटिस्टिक्स हैं। अब इसमें हमने जब से प्रारंभ हुआ, 7 सितंबर से प्रारंभ हुआ था 2020 में, अगर हम इसे 2021 के मुकाबले देखें तो सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही जो ई दाखिल माध्यम से जो डिस्पोजल है वो 2021 में पूरे साल में जितना डिस्पोजल था उसका भी 2 गुना हो गया। जैसे कि 2021 में पूरे साल में 284 केसेस डिस्पोज ऑफ हुए थे, लेकिन इस 2 महीने में 2023 में 595 केसेस हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। एक दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि क्लास एक्शन CCPA के माध्यम से हम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सभी मैटर्स हैं जिनके अंतर्गत CCPA ने एक्शन लिया है। अधिकांश मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और फिर उसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट।
कुछ एडवर्टीजमेंट्स जो हाल फिलहाल में CCPA के द्वारा नोटिस देने के बाद ही विड्रॉ कर लिए गए। नेक्स्ट, ये भी इसी प्रकार से उन्होंने करेक्टिव एडवर्टीजमेंट किया। एक कंट्री वाइड कैंपेन हमने चलाया जो कि प्रत्येक उपभोक्ता को, जिससे ऐसे जो गुड्स हैं जिनसे उनकी लगभग सभी का सरोकार होता है, उसमें प्रेशर कुकर्स और हेलमेट्स थे। और अब हमने इसमें इमर्शन वाटर हीटर्स, माइक्रोवेव अवन, गैस स्टोव, इन सबको भी शामिल कर लिया है। मुख्य बात ये थी कि इन सभी में QCOs हैं, यानी कि मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, और जिनका कि उल्लंघन ई-कॉमर्स की जो सबसे नामचीन कंपनियां हैं उनमें भी हमने ये पाया। और उसके बाद केसेस चला करके इनके ऊपर पेनल्टी निर्धारित की गई। तो पेनल्टी अब तक डिपॉजिट हो गया है पेटीएम मॉल, सोहेल इम्पेक्स और हार्ट ट्रैक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और 3 अन्य लोगों के द्वारा कोर्ट में उन्होंने पेनल्टी अमाउंट दाखिल किया है, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज है। नेक्स्ट, इनमें लगभग रिकॉल जो है वो 5500 प्रेशर कुकर्स का है। और इस कंट्री वाइड कैंपेन में BIS के द्वारा भी अनेक जगह पे छापेमारी पड़ी, जिससे कि जो जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो भी कर्ब किया गया। नेक्स्ट, तो वो हेलमेट्स का था, ये प्रेशर कुकर का है जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर हुआ, और ये डोमेस्टिक गैस स्टोव और LPG रेगुलेटर में। ये एडवाइजरीज इशू हुए CCPA के माध्यम से, जिसमें कि कोविड टाइम्स में तो जो हुआ ही, इसके अलावा वायरलेस जैमर्स के ऊपर एक एडवाइजरी इशू हुई टू ऑल ई-कॉमर्स एंटिटीज अगेंस्ट द इलीगल सेल एंड फैसिलिटेशन। इसके अलावा हमने आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स जो एक पर्टिकुलर शेड्यूल E में निर्धारित हैं, उनके ऊपर भी एडवाइजरी इशू की ई-कॉमर्स में। नेक्स्ट, सेफ्टी नोटिसेस हमने 2 निकाली हैं, जिनमें हेलमेट, प्रेशर कुकर्स, कुकिंग गैस सिलेंडर्स, और इसके बाद इनमें अन्य को भी शामिल किया है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज एंड DG BIS से लगातार हम लोग इंटरैक्ट करते हैं और उनको इनपुट्स शेयर करते हैं, ताकि वो किसी भी तरह के जो स्प्यूरियस या काउंटरफीट गुड्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। रेगुलेटरी बॉडीज के साथ भी इसी प्रकार से हमारा कोलैबोरेशन है, जैसे अभी DG CA के साथ, वेयर कोविड के दौरान जो टिकट्स बुक हुए थे उनके रिफंड के इशू हैं, उनको भी हमने उनको हाईलाइट किया है। IRDAI या CDS CO को भी हमने कुछ भेजा है, FSSAI। नेक्स्ट, कुछ कंज्यूमर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम हर प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एंड सच अदर मीडियम्स। नेक्स्ट, इस प्रकार से हम जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनका हम डॉकेट नंबर भी शो करते हैं, ताकि किसी को भी, कोई भी इससे वास्तव में सच्चाई का या सत्यता तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट, ये कैंपेन्स हैं अलग अलग डेज के लिए, साइबर अवेयरनेस मंथ हुआ या आयुर्वेद डे हुआ। नेक्स्ट, दूरदर्शन पे हमारे लगातार प्रोग्राम्स चलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे स्पॉट्स हैं, कोई एक दिखा सकता है, आई डोंट थिंक, नहीं इधर वाला पैकेज्ड कमोडिटीज। बिस्किट का पैकेट देना। ये लीजिए। अरे बहन जी, इस पर क्या ढूंढ रही हैं? MRP। MRP छोड़िए, लाइए 10 रुपए दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसकी MRP तो 9 रुपए है। MRP का अर्थ होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, सभी करों सहित, समझे? पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर MRP जरूर देखें और उससे अधिक भुगतान ना करें। उल्लंघनकर्ता की शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर करें। इसी तरह से कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट उसमें था, ट्रेड फेयर में जितने भी टिकट्स हैं उनके ऊपर हमने जागृति और 1915 को किया। नेक्स्ट, ये भारत पर्व एक वीडियो है, ओनली 10 सेकेंड्स, जो हम लोगों ने अभी 26 जनवरी को किया था। आगे बढ़ा दो।
ये सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। नेक्स्ट, हाँ इसमें भी दिखाना है। चलो नेक्स्ट, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में था। और फिर ये कॉमन सर्विस सेंटर्स पे भी हमारे इस तरह के पोस्टर्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये BIS की एक्टिविटीज। नेक्स्ट, जिसमें मुख्य रूप से हम ये इसमें कह सकते हैं, एक तो हॉलमार्किंग को लेकर के जो अभी एक डिसीजन आया है, और इसके अलावा जो QCOs में जो प्रगति हुई है, तो प्रमुख रूप से जो हमारे कंज्यूमर या हमारे मार्केट्स में नॉन स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड या डिफेक्टिव माल जिस प्रकार से बेचा जाता है, उसको क्वालिटी कॉन्शियसनेस के माध्यम से हम कंज्यूमर को न केवल सेफ बल्कि अच्छे परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट्स को मुहैया कराने का हम काम करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन प्रोसेस जो पहले बहुत लंबा था और जटिल था, उसको हमने रिड्यूस किया है और हमने इंश्योर किया है कि ये जल्द से जल्द एक सीमित समय में, चाहे वो रिव्यू का मैटर हो चाहे न्यू स्टैंडर्ड्स की बात हो, तो वो इसको किया जा सके। नेक्स्ट, ये एक प्रोसेस होता है QCOs का। तो जैसे आप जानते हैं DPIIT मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही लगभग 317 प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस समय QCO के अधीन लाए जाने वाले हैं। इनमें 59 QCOs होंगे। इनमें से 46 QCOs के ऊपर ऑलरेडी कंसल्टेशन हो चुकी है और जल्द ही इन्हें WTO के पोर्टल पे होस्ट किया जाएगा। इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत 99 प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया गया है, जिनमें 5 QCOs ऑलरेडी उनको ड्राफ्ट किया जा चुका है, BIS के द्वारा वेट किया जा चुका है और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी हो चुकी है। तो ये 5 QCOs 60 प्रोडक्ट्स को कवर करते हैं और इनमें से 3 QCOs with 32 products have already been hosted on the WTO portal। हम इसी प्रकार की व्यवस्था DCPC और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील आदि के साथ कर रहे हैं। ये एक सेकंड पाई चार्ट, ये मुख्य रूप से एक दिखाता है कि हमारे जितने भी QCOs हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ईयर वाइज भी दिखाता है कि क्या प्रोग्रेस रही है। तो यदि हम 1978 में देखें जहां 3 थे, आज वो बढ़ करके 461 हो गए। और इसी प्रकार से अगर हम 2014 को भी रखें तो 2014 में 121 थे, तो लगभग 3 टाइम्स 4 टाइम्स हम QCOs को ले करके आ पाए हैं। नेक्स्ट, एक और रिफॉर्म जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स पे चल रहा है वो ये कि किस प्रकार से स्टैंडर्डाइजेशन एक होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी के रूप में लिया जाए। इसमें हम एक्सपर्ट्स को भी अधिक रूप से शामिल कर रहे हैं और एक मानक मंथन करके एक कार्यक्रम है जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर नए स्टैंडर्ड्स पे डेलिब्रेशन होते हैं, रिविजन्स उनके कैरी किए जाते हैं या अमेंडमेंट्स होते हैं और वाइड सर्कुलेशन किया जाता है। इससे कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेक्शनल कमिटीज़ हैं, चाहे वो टेक्निकल कमिटीज़ हैं, इनके लिए भी हमने ये व्यवस्था की है कि न केवल एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो बल्कि रेगुलर अटेंडेंस हो, फ्रीक्वेंट मीटिंग हो, ट्रैक रखा जाए क्या प्रोग्रेस हुआ। ऑलरेडी हम लोग स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान को लॉन्च कर चुके हैं जो कि 5 वर्ष का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें डिसिप्लिन वाइज कंसल्टेशन विद ऑल BIS साइंटिफिक ऑफिसर्स है, सेक्टर वाइज इंडस्ट्री और अदर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रमुख रूप से रहेंगे। इंटरनेशनल फुटप्रिंट भी बढ़ा है और न केवल एपेक्स गवर्नेंस बॉडी ISO काउंसिल में हमारा प्रतिनिधित्व है, बल्कि जो स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ IC है उसमें भी हम आ गए हैं। नेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड प्रमोशन के अंतर्गत जो हम युवा लोगों के साथ
उन्हें शामिल करके हम प्रमोशन का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें लगभग अब ये गिनती जो है लगभग 4000 नए स्टैंडर्ड क्लब्स की आ गई है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। और इसी में 51 लेसन प्लान्स अंडर द लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स हैज़ बीन डेवलप्ड, जो कि कल उसका लॉन्च जो है माननीय मंत्री जी करेंगे। नेक्स्ट ये BIS केयर ऐप को भी बहुत वाइब्रेंट बनाया गया है, बहुत रोबस्ट बनाया गया है, ताकि जो कंप्लेंट्स आती हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ जो उपभोक्ता को रोकती रही है वो ये है कि उसे कहीं ना कहीं किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे या उसे बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी करनी होगी। वास्तव में इस BIS केयर ऐप के माध्यम से वो न केवल जैसे हॉलमार्किंग की अपनी ज्वेलरी की HUID वेरीफाई कर सकता है, बल्कि जो भी सामान खरीद रहा है उसमें भी देख सकता है कि ये वास्तव में स्टैंडर्ड का है कि नहीं। वास्तव में इसमें कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे मान लीजिए गेट नीचे देखें लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हुज प्रोडक्ट्स वर रिकॉल्ड, तो ऐसी चीज़ भी पब्लिक को पता होनी चाहिए। लेकिन ये BIS केयर ऐप के माध्यम से जब भी कोई उपभोक्ता कोई सामान खरीदें तो वो इन सब चीज़ों पे अपनी जांच कर लें। अवेलेबल होगा। हाँ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये नेक्स्ट ये हॉलमार्किंग से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रही है डिपार्टमेंट की, और एक प्रतिबद्धता रही है कि उपभोक्ताओं को जो क्वालिटी की अश्योरेंस चाहिए वो हॉलमार्किंग के माध्यम से काफ़ी हद तक सफलीभूत हुई है। लगभग 92.08% जो सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं दे हैव बीन पासिंग, विच मीन्स कि वास्तव में जो मार्केट सर्वेलेंस के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं तो भी एक अच्छी प्रतिशत जो है वो कंप्लायंस का है। 17 करोड़ से भी अधिक, मतलब लगभग 18 करोड़ ज्वेलरी पीसेस अब तक हॉलमार्क किए जा चुके हैं, और 1.5 लाख से भी अधिक ज्वेलर्स जो हैं वो इस पे रजिस्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट एक सेकंड पीछे। तो ये प्रमुख रूप से ये 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID है, और 1 जुलाई 2021 से इसी प्रकार के हॉलमार्क को करना था। लेकिन ज्वेलर्स का जो एक था कि उनके पास स्टॉक अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, इसी कारण से कई बार एक्सटेंशंस दिए गए, और अब फाइनली 1 अप्रैल के बाद से सिर्फ यही जो HUID है, यानी 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID, जिसमें कि BIS का लोगो होगा, प्योरिटी ऑफ आर्टिकल लिखा होगा, उसी को मान्यता रहेगी। नेक्स्ट तो इस प्रकार से इसे भी वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे अगर हमने वेरीफाई HUID किया BIS केयर ऐप पे, और फिर हम यहाँ पर गए तो हमने अपना वो नंबर डाला, तो हमें इमीडिएटली सारी बातें पता चल जाएंगी, जिसमें कि ज्वेलर हु गॉट इट हॉलमार्क्ड, उसका नाम, हिज रजिस्ट्रेशन नंबर विल आल्सो अपीयर, असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का वो कौन था, उसका पता, उसका नाम, और उसका जो रिकॉग्निशन नंबर है वो आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, क्या आर्टिकल है ये भी पता चल जाएगा, और डेट ऑफ हॉलमार्किंग क्या थी ये भी पता चल जाएगा, प्योरिटी क्या है ये सभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, तो अगर हम एक ईयर वाइज देखें तो चाहे वो नंबर ऑफ ज्वेलर्स की बात हो, वो देख सकते हैं कि बहुत अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, नंबर ऑफ असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स, या नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच हैव बीन हॉलमार्क्ड। नेक्स्ट, सो द इम्पैक्ट इज कि उन्हें बिना किसी अत्यधिक प्रयत्न के वो अपनी हॉलमार्क ज्वेलरी की ट्रेसिबिलिटी भी जान सकते हैं, और उन्हें क्वालिटी का गारंटीड अश्योरेंस उनको उपलब्ध हो रहा है। इसमें कुछ सवाल इस तरह के आ रहे थे कि जो ज्वेलरी कंज्यूमर के पास पड़ी है, यदि वो हॉलमार्क्ड है या नहीं है, या पुराना कोई हॉलमार्क्ड है तो उसकी मान्यता है कि नहीं है। तो उसकी हर प्रकार से मान्यता है, उसे कंज्यूमर को इसमें कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन
अगर कंज्यूमर को किसी भी तरीके से ये पता चलता है कि हॉलमार्क ज्वेलरी में कुछ कमी आई है, यानी लेसर प्योरिटी की दैन द डिक्लेयर्ड वैल्यू है, तो उसे BIS रूल्स 2018 के अंतर्गत कॉम्पेंसेशन का राइट होगा। और कॉम्पेंसेशन कितना होगा? तो 2 times the amount of difference which is calculated on the basis of shortfall of purity for the weight of such article which was sold and the testing charges. Next. तो ये टेस्टिंग को भी हम बहुत अधिक संख्या में इसको बढ़ा रहे हैं, ताकि जो हम कंफर्मिटी असेसमेंट के अंतर्गत जिन आर्टिकल्स को ला रहे हैं या जिन्हें हम QCO के माध्यम से ला रहे हैं, उन सब की जांच परख सहूलियत से सभी के लिए हो जाए। नेक्स्ट 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 कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि ये टेस्टिंग के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, और चूंकि हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो मुख्य रूप से टेस्टिंग ऑफ ऑल मेटल्स, प्लास्टिक्स और उनके जो एलाइड प्रोडक्ट्स हैं उनको करेंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटराइज स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेस्ट है जो कि स्टील वायर्स आदि के लिए होता है। नेक्स्ट, इसी तरह से ये फास्ट ट्रांजिएंट बर्स्ट जनरेटर है, ये मुख्य रूप से एनर्जी के मीटर्स के लिए होता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए इम्पल्स टेस्टर है। ये सभी मतलब BIS मुख्य रूप से इनको प्रोक्योर करेंगे ताकि हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी अपने कंट्री में स्थापित कर सकें। नेक्स्ट, ये NTH से रिलेटेड है, चूँकि 2 लैबोरेटरी का उद्घाटन कल माननीय मंत्री जी करेंगे। पिछले जो अचीवमेंट्स रहे हैं पिछले साल के, तो जैसे चेन्नई में अभी हाल में ही इम्पैक्ट वोल्टेज जनरेटर को इंस्टॉल किया गया। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाई वोल्टेज लैब है चेन्नई में, इसका भी उद्घाटन हुआ। और कल जो है माइक्रोबायोलॉजी लैब इन गुवाहाटी, दैट विल बी इनॉग्रेटेड। नेक्स्ट नेक्स्ट, इनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जैसे ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी एट NTH गाजियाबाद, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी टेस्टिंग एट NTH मुंबई एंड कोलकाता। इसी प्रकार से जयपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स, और फुल वाटर टेस्टिंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के अंतर्गत चाहे वो रिवर वाटर या अन्य जितने भी हैं, ये सारे NTH के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हैं जो हम इस वर्ष हम पूरी तरह से उसे कर पाएंगे। लीगल मेट्रोलॉजी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, quality control orders है, they are applicable also for imported products लॉन्च वाला जो है स्लाइड बोला the same category. So, and they are different from global standards. Which They are one? unique. Our quality control orders, say for example toys. So, I mean, it's mandatory for our manufacturers as well as the ones that we import. करेक्ट। Yes. So whatever is being imported or manufactured, they have to adhere to that QCO quality and that standard. That may be an international standard or even over and above that. So does it form any kind of non-tariff barrier for trade? I mean, will it No, reduce it forms a quality barrier. There has to be a quality, an acceptance and a safety standard is there, and you would want the consumer to be safe while using those, and therefore it may in a way behave like a non-tariff barrier, but it is not. We are improving the quality on the production side as well as on the import side. Then we know your names. I'm Vineet Kumar, Joint Secretary. He's joint secretary. Thank you, sir. व्हीकल बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटी, हाँ। इसमें मैम क्या प्लान है, कैसे
करने का योजना है आगे को लेकर? देखिए, जैसे आप जान ही रहे हैं कि हमारा ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी बिल्कुल इट इज़ अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव. सो उत्तरोत्तर ऐसी व्हीकल्स आएंगी जहाँ पे जिनमें बैटरी की बहुत मेजर रिक्वायरमेंट होगी. तो इसके लिए हम अपनी टेस्टिंग लैब्स को सुसज्जित कर रहे हैं कि और हम उनको एम्पावर कर रहे हैं कि वो उनके पास टेस्टिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं. So what is the total number of cases pending in federal courts? So it is about 5 lakh, about 5,40,000 Is that cases. there in that slide? Disposal? Uh, No, I'm just asking. Probably Oh. should have been there. Yeah, there was Yeah. one slide. The disposal rate is there with the total number of cases pending on say given date, say first of January 2023 and 1st of January. मैडम बता रही हैं 5 लाख के ऊपर है. वो स्लाइड दिखाओ दिव्यांश, जो डिस्पोजल वाला. बट फिर भी सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, और हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं. तो जैसे ई कोर्ट्स भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में बेहद स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हम सारे जो व्यवस्था है, चाहे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि जैसे हमने ई दाखिल किया, तो ई दाखिल बिल्कुल एक छोटा सा एप्लीकेशन था कि व्यक्ति ने अपना एप्लीकेशन डाला, मगर उसके बाद फिर क्या हुआ, तो उसके भी तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने उसको एंड टू एंड प्रोसेसेस को हमने स्टडी किया है और हम इसे डिजिटाइज करने जा रहे हैं. तो चाहे वो एप्लीकेशन जब पेटिशन डालते हैं तो क्या क्या चाहिए, और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो विदेशों में यहाँ के जो ग्राहक हैं, उन्होंने कुछ सामान खरीदा या कोई सर्विसेज से उनको कोई डेफिशिएंसी मिली, तो वो वहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं और वो अपीयर भी हो सकते हैं. सो द होल आइडिया फॉर द कंज्यूमर इज टू एक्चुअली मेक इट हैसल फ्री, टू मेक इट much easier and very very speedy redressal for the people who are operating the consumer commissions. तो उनके लिए भी उतना ही ये महत्वपूर्ण हो. तो ये एक्चुअली ईयर ऑन ईयर है, तो probably you will not get the complete picture, but I know that it is about 5,40,000. To repair some kind of a legal right, or is it? So basically as of now it is देखिए, जो लाइफ मूवमेंट के जो 3 R's हैं, RRR, और RRR तो अभी आजकल बहुत it has won Oscars, बट जो RRR हमारा है वो है रिड्यूस. उसी रिड्यूस के अंतर्गत ही रिपेयर है. हाउ डू वी रिड्यूस, तो मतलब एक तो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कम करें, लेकिन हम तो वो कर नहीं सकते हैं, मगर क्या हम उसी को रिपेयर, उसकी रिपेयरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं क्या, यानी कि रादर दैन कि कोई प्रोडक्ट में छोटी सी कोई खामी आई और उसको कंज्यूमर बेचना भी नहीं चाहता, छोड़ना भी नहीं चाहता, और वो अदरवाइज मतलब खुश है, संतुष्ट है उससे, तो क्या वो अच्छे रिपेयर के जो इकोसिस्टम है यदि हम उसको दें, तो क्या वो अपने प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ा सकता है क्या. जैसे कि ज़रूरी नहीं है, जैसे होता क्या है अभी कि सेल्फ रिपेयर के मैनुअल्स वर्चुअली नहीं आ रहे हैं. किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदें तो जैसे पहले बड़े ही लंबे और डिटेल्ड मैनुअल्स आते थे कि भाई ग्राहक को इसमें या यूज़र को क्या क्या करना चाहिए, कैसे उसको पीरियोडिकली उसको खुद ही साफ़ सफाई करनी चाहिए, या कैसे उसकी ग्रीजिंग और अन्य चीज़ें करनी चाहिए. मगर अब क्या है, वो सारी चीज़ें इतनी कॉम्पैक्ट हैं कि वर्चुअली कंज्यूमर को नहीं पता चलता. तो हर छोटी चीज़ के लिए उसको कहीं जाना पड़ता है, या फिर वो सोचता है कि भाई वो तो अब रिपेयर के बियॉन्ड हो गया, तो उसे फिर दूसरा ही प्रोडक्ट खरीदना होगा. तो जब हम राइट टू रिपेयर की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में हम ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि कई कंज्यूमर्स जो हैं वो हो सकता है कि वो रिपेयर करके भी अपने प्रोडक्ट के साथ उन्हें यूज़ कर सकें. इसके लिए वो इकोसिस्टम आना चाहिए. इकोसिस्टम में सेल्फ रिपेयर, दूसरा ऑथराइज्ड रिपेयर, और तीसरा थर्ड पार्टी रिपेयर. तीसरा थर्ड पार्टी रिपेयर, यानी कि
Yes. अगर मैं नहीं चाहती कि जैसे मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि जैसे मान लीजिए मारुति है या कोई और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके मान लीजिए अपने सर्विस सेंटर्स हैं, मगर हो सकता है कि उसको अब एक नया सर्विस सेंटर खुद का खोलना हो सकता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो, तो क्या वो ऑथराइज कर सकता है अन्य लोगों को, वो सिखा सकता है, और वो इस तरह से पूरे कंट्री में या जहाँ जहाँ भी उसके प्रोडक्ट्स की सेल है, कम से कम वहाँ पे एक ऑथराइज्ड और जेन्युइन रिपेयर की व्यवस्था कर सकते हैं। इसको मैंडेटरी करने का भी कोई प्लान है क्या? अभी तो पूरी तरह से वॉलंटरी है कि आप तो डिस्क्लोज अभी कीजिए हाँ, कभी। तो जैसे अभी आपने देखा होगा हॉलमार्किंग भी वॉलंटरी था, तो इसी तरह से हम पहले वॉलंटरी में चलेंगे और हमें इंडस्ट्री का एक अच्छा सहयोग मिल रहा है। मुख्य चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी भी आर्टिकल का, मान लीजिए हमें आयरन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका ऑथराइज रिपेयरर कहाँ है। अगर कोई स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता की बात है, कई बार क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट खरीदा और उसको बोल दिया कि ये 10 साल की गारंटी है, मगर 4 साल के अंदर अंदर कंपनी ने कह दिया कि ये तो बंद ही हो गया, ये तो अब हम बनाते ही नहीं है, तो फिर उसे कम से कम 10 साल की वारंटी अगर वो दे रहा है या गारंटी दे रहा है, तो कम से कम उसे रिमेनिंग पीरियड के लिए स्पेयर पार्ट्स को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। So once you are confident of building an ecosystem, you might move towards making it. No, we are mandatory. just Correct. trying that the stakeholders concerned should understand the responsibility, and they should actually come forward and also play their own active role to reduce, the unnecessary wastage that we are experiencing And what today. is this site? How will it help in common? So the site, yeah, so the site will basically guide the consumer to the most genuine and the, because what happens is, uh, if you type it on, the general search engines, many times consumers also get conned. So we thought that we require, a portal to be set up under the department, which can give links to the authorized, say, repairers. Genuine repairers. Yeah. Where people can have the satisfaction that whatever they are, doing, it is through an authorized. जी हाँ, this was launched last year, और अभी हमने 2 सेक्टर्स को लिया है इसको पॉपुलेट करने के लिए। Any idea? मोबाइल्स में आ गया है सैमसंग। हाँ। So mobiles and Kent ROS also come. okay. 2 sectors you said, mobiles and नहीं 4 नहीं, sectors. there are 4 there are 4 sectors. sectors, but Consumer focusing- durables. Focusing on consumer. No, so there are 4 sectors which we have identified. So one is consumer durables, which is a very vast field. Then there is automobile. The third is farm equipment. farm equipment. Fourth is the mobile and electronics. and consumer goods. So can you give a few names of popular brands which are already on board? हाँ, website पे वैसे आप- नोकिया ने ना हाँ, अभी अपना नया फोन जो लॉन्च किया है उसमें वो निकाला है पूरा कि हाउ टू रिपेयर। correct. In fact, जस्ट अभी किया है आपके इंटरव्यू के बाद में इनफैक्ट मैं से एक brand? इंटरनेशनल सेमिनार, मतलब वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रही थी, आई थिंक ICPN का था, और उसमें मतलब हालांकि न्यूयॉर्क स्टेट ने कुछ अपने इस तरह के एक फ्रेमवर्क लेकर के आए हैं, मगर लार्जली देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट अमंग अदर कंट्रीज कि इंडिया क्या कर रहा है, एंड दे वांटेड टू नो फ्रॉम अस कि आपने अच्छा, ये कितना अच्छा पोर्टल आपने कर लिया। No, this doesn't cost much. The whole idea is transparency. The whole idea is collaboration. The whole idea is, let us, make honest disclosures to consumers. मेरा सवाल ये था, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और the CCP is the entire big tick inside. So one provision was a class action suit. So CCP has taken several class actions by imposing fines. But has any case gone up to the extent of CCPA, recommending that the suit should be filed in NCDR? I think that was the provision. So has there been any case like that, or any case like it
So it is possible that we have, for example, taken out the penalty orders. We have also given them say 45 days for recall of goods, right? Now we are waiting, if that period ends, and if nothing happens, if they also do not uh, appeal against my order, then naturally such class suits will happen. As of now, ये ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं वो आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। सीधा स्टॉक का आपने ऑर्डर दिया था, आपका फॉलो नहीं हुआ, अभी दिख रहे हैं। और ये तेजाब जो आपने बोला था कि नहीं दिखेगा, वो आज भी दिख रहा है। तो अगेन मतलब वो अभी ऑर्डर नहीं निकला है, उनको हियरिंग का तो समय आपको देना ही पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन को भी आपको करवाना ही पड़ेगा। सो अंडरस्टैंडेबली उन्हें पता है कि ये मैटर्स जो हैं वो रेगुलेटेड हैं, और अल्टीमेटली एज आई सेड देखिए हम ऑर्डर पास करेंगे, वी वुड आस्क देम टू से अबाइड बाय दैट, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो अबाइड करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो एज दीपक हैज आल्सो सेड, वी विल देन इंस्टॉल वी विल इंस्टीट्यूट अ केस। तेजाब तो नहीं बिक रहा होगा ये ऑनलाइन? There are acids or corrosive elements, so it is regulated. So we had asked BIS to investigate, because what kind of, it is not prohibited, it is It's only not prohibited. regulated. Yeah. So, So it is what kind of regulated. regulation applies? So regulation is that a certain concentration का ही, only certain concentration का ही नाइट्रिक एसिड या कोई भी इस तरह का जो corrosive substance है वो बेचा जा सकता है। दूसरा कि it cannot be sold to minors. The sellers will have a logbook maintained. This is also under the guidance of the Supreme Court's order. And different state governments have thereafter also filed, they have come out with their own rules. तो ई कॉमर्स पे प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी कहीं से भी बैठ करके ऑर्डर भी कर रहा है और उसको मिल भी जा रहा है। तो so what is important is that whether the e-commerce entities are taking due diligence before selling such a highly regulated item on their entities. तो कई बार क्या होता है कि entities जो हैं वो safe harbor का एक escape ढूंढती हैं, but naturally we know that Are you investigating any cases at the moment? So we are. Because it also involves women's. Absolutely, All of absolutely, those things are very absolutely. important. So there are two cases which we are looking at. What kind of cases? Just give us a. So there is Flipkart, जिसपे and कौन सा ये Meesho, And Meesho. ये किसके लिए मैम? corrosive acid sale. So I mean, obviously they get a chance to. They have to be given a fair chance to at least ये तो द्वारका में say जब केस हुआ तब से बात किया था ना? हाँ उसके बाद तो ये तो रिपोर्टेड है नहीं? हाँ रिपोर्टेड, मगर अभी मतलब मैटर क्लोज नहीं हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट मतलब उसके ऑर्डर्स वगैरह आ गए। Any conclusions that you have drawn? So we are only saying, we are asking the entities to follow the instructions that have been laid down by the Honorable Supreme Court in the matter, and also follow the rules which require them to make sure that they are not sold to minors. They should also keep a logbook of who they are selling it to. They have to also write and also enter. For what purpose do they write? I mean, एक एसिड क्यों चाहिए? अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि जैसे टॉयलेट क्लीनर है उसमें भी एसिड है, मगर आप तो टॉयलेट क्लीनर मांगते हो ना कि एसिड, और उस एसिड से तो कुछ नहीं होगा। सो इट इज नॉट दैट, मतलब वो जो क्लीनर के रूप में यूज होता है वो pretty much harmless. तो वो सारे जो है ना, मतलब not the same as the which can cause used to harm commit crimes. or which can cause burns. तो वो तो कुछ ही हो सकते हैं जो कि मान लीजिए कोई केमिस्ट्री की लैब है उसमें एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए, तो
The entities should actually follow the Honorable Supreme Court's directions on these issues. That's it. हाँ. ओपन बस के क्लास उस पे जो टिकट रिफंड वाला जो इशू था, यात्रा है या और है, उसमें अभी करंट स्टेटस क्या है, हियरिंग कब है और कितना आपको हियरिंग हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय दिया था. When is the next 16? शायद यात्रा ऐसा नहीं होता सर. एकेडमिक क्वेश्चन, ये एमआरपी वाला सिस्टम कभी खत्म होगा हमारे देश में? आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एमआरपी नहीं लगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं एमआरपी नहीं. ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड एमआरपी मार्केट प्राइस तो होगा, लेकिन एमआरपी नहीं है. मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना हमारे यहाँ. मतलब फिर तो एमएसपी ये वैसी बात हुई कि भाई हमें तो पूरी चीजों को देखना चाहिए. मात्र किसी की आंखें अच्छी हो तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन उसी ये को है ले कि लें. जैसे एक ऑयल का टिन ही दे दो, वो दिखाते हैं एमआरपी 4000 रुपए, हम आपको डिस्काउंट में 1700 रुपए का दे रहे हैं, ये आप किसी भी वेबसाइट पर दे आपको मिल जाएगा. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपने नीचे बाजार वाले से लेना चाहता तो मुझे वो 4000 रुपए का पकड़ाता है, तो ऑनलाइन खरीदता हूँ तो 1700 का मिलता है. तो ये एमआरपी का डिफरेंस कैसे रिजॉल्व होगा? नहीं, एमआरपी तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, उसके उसके ऊपर नहीं 4000 पहुंच रुपए, आप 4000 रुपए का लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये तो मतलब कन्वीनियंस ऑफ कंज्यूमर के ऊपर है कि भाई वो कहाँ से जाके और किससे खरीदता है, वो किसी चीज का क्या दाम देता है. 4000 के ऊपर बेचना जायज नहीं. लेकिन वो मैं प्रोडक्ट मुझे ऑनलाइन या कहीं किसी और दुकान पे 1200 को 1500 रुपए का ठीक मिल है, रहा तो ले लें. मतलब क्या दिक्कत है? आपको निर्णय लेना क्वालिटी और प्राइस. मतलब ये तो कोई अपराध नहीं हुआ ना कि कोई आदमी आपको डिस्काउंट पे कितने कम पे दे रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमम है. तो उस मैक्सिमम के अंदर वो हो सकता है अपने कमीशंस को फॉरफीट कर रहा हो. मतलब एक सवाल ये है, जो आप क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का आइटम, तो लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स माइट बी नोइंग, इंडस्ट्री माइट, सम कॉमन सिटीजन माइट, बाकी लोगों को पता ही नहीं कि किस किस का क्यूसीओ है. हाँ. I suggest any kind of initiative you are taking to make people aware. तो वी विल बी डूइंग इट. वेरी गुड आइडिया. हम लोग इस पे लगातार अपनी पब्लिसिटी को अब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि क्यूसीओ भी आने में 6 महीने लग ही जाते हैं. तो इस दरमियान जैसे कि हमने आपको ये बताया ना कि कुछ का ऑलरेडी हमने WTO में डाल दिया है, तो परहैप्स उन आइटम्स को हम बहुत ही एक्सटेंसिव पब्लिसिटी में लेंगे. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अनुपम, यू हैव अ टास्क. That's it. Thank you. बाइक को भी हम बाइक हाँ, लेकिन थोड़ा पता चले बाकी स्टोरी रह जाएंगे. I'll take just 2.